मी समथिंग, अगर कोई इंसान, कोई फैमिली ये सारी चीज़ें परफेक्ट कर लेती है तो क्या उसकी लाइफ परफेक्ट हो जाएगी? देखो, परफेक्शन ये है कि मेरा हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देता Yeah. और एक हफ्ते बाद वो मेरे पीछे ही पड़ा रहता है, मुझे स्पेस नहीं मिल रही. इफ़ योर ब्रेन इज स्टेबल, half of the time you won't even need half of the things. Sometimes we don't know what we are asking for and we create a bigger problem for us. For example, आप जब प्रे करते हैं या हम लोगों को प्रे करते हुए देखते हैं, हम बोलते हैं गॉड गिव मी स्ट्रेंथ. Why are you asking for strength? Because you're asking for problems or tests to be taken. When will you show your strength? आपको ताकत दिखानी कब है? जब सिचुएशन आएगी. So you're not just asking for strength, you're asking for situations where you prove your strength. फिर आप कहते हो भगवान मैंने ऐसा क्या किया कि मेरे साथ ही क्या हो गया? Look, the byproduct you're asking comes with a cause. So when we want सब चीज़ें perfect हो जाएंगी, that is end of life. You will never grow and progress. It has to be ever evolving. You have to jump from one peak to another. Okay. There should not be a peak in life. That is end. अब तो नीचे ही आना है. So the point is that progress is the word, not perfection. It doesn't exist. Okay. So if we fix everything as per your recommendations, you'll have higher chances of growth and you'll have higher Absolutely. chances of moving forward. And you choose one by one as the matter of priority. Okay. और अगर इसको हम वाइस वर्सा डिस्कस करें कि जिसकी लाइफ में मोस्ट ऑफ द टाइम चीज़ें ठीक रहती हैं, कैन बाय डिफॉल्ट ठीक रहता है. बाय डिफॉल्ट ठीक रहता है, लाइक मोस्टली थिंग्स आर जैसे व्हाइट हाउस. हाँ, तो क्या वहाँ का वास्तु एकदम परफेक्ट है? करेक्ट. A institution that has a strong ley line going towards north, east, west and south. चार तरफ open. और हमारा old parliament, north road coming and hitting the parliament, it is only about money, the previous one. So thanks to the Britishers जो हमारे लिए खूबसूरत सी चीज़ें create कर गए. But why do we say round table conference? क्योंकि उस पर कोई डिस्कशन ही नहीं निकलता. कॉन्फ्रेंस है, राउंड मीन्स देर इज नो पॉइंट, देर इज नो एंड टू इट, इट्स सर्कलिंग. हेंस वी कॉल इट राउंड टेबल डिस्कशन. इसीलिए घर में कहते हैं राउंड बेड मत रखो, राउंड डाइनिंग टेबल मत रखो, क्योंकि आपकी बात का कोई फाइनलाइजेशन ही नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग जीरो. नाउ दैट जस्ट डजंट स्टे टू योर होम, इट स्टेज टू योर कंपनी लोगोज, योर सिग्नेचर, योर podcast logos and several other things. Okay. It's the same element. But when do we want round things? Like जब हमें खत्म ना करनी हो, जब हमें solution ना निकालना हो, जब हमें गोल गोल घूमना हो, गेड़ा मारना हो. Okay. I think that will never happen. So should we never have a round? No, that's not completely true कि हम कभी round नहीं रख सकते. But the purpose of round things is when you want something like an intuition, you know, you want a progress, you want a ever evolving thing. But when you are doing a conference, it only means you have limited time, na? कितना देर बहस कर लोगे? So when you want a conclusion to something, then you need to have it a square shape. You need to give it a rectangular shape. So shapes का एक बहुत बड़ा significance होता है. Correct. Colors, shapes. Vastu is not just directions. It is what do you do with the directions. खाली घर, एक मकान थोड़ी ना सिर्फ वास्तु क्रिएट कर देगा. उसके अंदर क्या रखा, बाहर से क्या है, सब मिलकर ही तो बात बनेगी. It's deep. विमेन इन इंडिया स्पेशली बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड चैलेंजेस कुछ ना कुछ चलते रहते हैं. थिंग्स लाइक PCOD, हर 5 में से एक औरत को PCOD है, और हार्मोनल हेल्थ आजकल बिगड़ती जा रही है. तो इसके लिए कुछ ऐसे टिप्स या समथिंग दैट दे कैन डू टू कीप देयर देयर हेल्थ in place? For any remedy, I always tell people that this is just like supplements. अगर आप बीमार हो तो आप सप्लीमेंट साथ में लेते हो, ओमेगा लेते हो, या आयरन सप्लीमेंट लेते हो, या कैल्शियम, whatever supplement you take is a supplement. It is not a substitute of a medicine. Any health ailment you have, you need to see a doctor, you need to take the right medicine, and not even alternative therapies. Actual way, because वो चीज़ बढ़नी नहीं चाहिए. फिर साथ साथ में कैरी ऑन करो, कंट्रोल करो, and then manage करो. Without the medical part also, it's a separate thing. But first bring it into your control. That's the first thing. वो तो मैं खुद अपनी डाइट से और अपनी वीडियोस के थ्रू उनको एम्पावर करती रहती हूँ कि दैट्स द मेन थिंग. ऑफ कोर्स कि हमने वो नहीं छोड़ना है. इसके साथ में क्या फीमेल रिलेटेड फर्टिलिटी इश्यूज, और द फ्लो ऑफ पीरियड्स, और द हार्मोनल इश्यूज, अ लॉट ऑफ देम, इफ इट्स जस्ट अबाउट द जेनिटल्स ऑफ वुमेन, एज यू आस्क्ड मी, इज फ्रॉम साउथ ईस्ट ऑफ द होम. जब यहाँ टॉयलेट होता है,
घर में गेट हो जाता है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लू और ब्लैक कलर हो जाता है. फायर एलिमेंट को ख़त्म करने वाली चीज़ें Okay, जब भी हो जाएंगी, एंटी एलिमेंट पानी Okay. ख़त्म करेगा ना आग को, ब्लू और ब्लैक कलर हो जाएगा, वॉशरूम हो जाएगा, ड्रेनेज एनर्जी हो जाएगी, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं. देयर आर सेवरल डिटेल्ड ट्रीटमेंट्स फॉर इट इफ़ यू रियलाइज यू हैव एंड इट्स मैचिंग विद द सिम्टम. देखो वास्तु का एक सिंपल थंब रूल है, हर चीज़ हर समय गलत नहीं हो सकती. कभी कभी तो वो चीज़ एक्टिव ही नहीं होती. अगर वीनस का फेज नहीं है तो बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट भी नहीं पड़ेगा. सो द पॉइंट इज दैट इट हैज़ टू मैच द सिम्टम. ऐसा नहीं है कि अब हॉस्पिटल आ गए तो सर्जरी करानी है. सो समटाइम्स कुदरत अपने आप बैलेंस कर देती है, एंड इट्स ब्यूटिफुली व्हेन नेचर बैलेंसेस. व्हेन यू फाइंड एन इम्बैलेंस, स्पीक टू समबडी एंड यू विल गेट अ सोल्यूशन. सब चीज़ अपने आप मत ठीक करने चले जाओ. कुछ नेचर अपने आप ठीक कर रही है, उसको ख़राब ना करो. लेट इट बी विथ अ प्रोसेस. द प्रॉब्लम विथ पीपल इज़ कि सब कुछ इंस्टेंट चाहिए. वो होता नहीं है. यू कांट मेक 9 women pregnant and expect the child in 1 month. ये संभव नहीं है. दिस इज़ नॉट पॉसिबल. So similarly, anything that you feel is matching with the symptom, if you have a problem and you see there is a problem in Southeast, you should surely speak to a consultant and they'll guide you the right thing. और आपको थोड़ी basic knowledge होगी तो आप बेवकूफ़ भी नहीं बन पाओगे. Right. But if it's not matching the symptom, then it could be a stronger way where your horoscope is affecting it, Okay. not just the vastu of it. Then also see, एक बार वो भी नज़र करा लो. आजकल तो सब कुछ इतना simply available है. समझ लो if he is looking at your chart and talking about the symptoms. If he is तो solution पूछ लो. सिंपल रेमेडीज होती हैं. कोई पाठ कर लिया, कोई पूजा कर ली, कोई चीज़ डोनेट कर दी. बाहर नेचर में आउटफ्लो लाकर अपना भलाई करोगे. एंड sometimes it is also the psychological issues that you have which creates that, which is a psychosomatic disorder. उसमें भी अगर लगता है तो read some books, understand the psychology behind the medical issues you're facing. If you feel कि मैं mentally ऐसे सोचती हूँ और मेरी body ऐसे react कर रही, then you also need again a specialist. Figure out करो, symptoms match करो in every area, and you will get solutions always and always. But be interrogative. हम अंदर नहीं जाना चाहते और बाहर जवाब ढूंढते हैं, ऐसा होगा नहीं ना. एट द सेम टाइम कुछ लोगों को स्लीप डिस्टर्बेंसेस, स्लीप इश्यूज, इंसोम्निया बहुत ज़्यादा रहता है. इसका भी कुछ लिंक हो सकता है. आपकी बॉडी का हेड इज नॉर्थ पोल and your feet is south pole. That's how the energy of the flows. body. Yes. If you're sleeping with your head towards the north, it's repulsive energy. सिर दर्द, migraine, headache, sleep disorders, ये बड़ी आम बात है. अब आप कहोगे कि मैं बेड तो नहीं चेंज कर सकती है, मैं कैसे चेंज करूँ, टीवी इधर है, ये इधर है, and then people look for excuses and not do. I'll say don't do anything. अपने बेड से ही चेक कर लो कि साउथ किस तरफ है, पिल्लो उस तरफ रखो और सो जाओ. Amazing.